नमस्कार। कार्यक्रम कला संगम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कला, साहित्य, संस्कृति, गायन, वादन या लोक नृत्य हो या हमारे देश की तमाम परंपराएं हों, इनको सहेजता है कार्यक्रम कला संगम। कार्यक्रम कला संगम में आज होंगी दो खास सितारों की बातें, एक कर्मयोगी तो दूसरा कलमकार। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। जी हाँ, एक ऐसा कर्मयोगी जिसने जिंदगी के तमाम पहलुओं को देखा, समझा और मंथन किया। अपने हुनर और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपना सफर तय किया और तमाम दूरियों को कम करते चले गए। बेहद सहज, सरल, बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण, मृदुभाषी और अपने काम के प्रति समर्पित, समय का पाबंद सितारा जिसने जहां भी काम किया अपनी एक खास छाप छोड़ी है, वो हैं दूरदर्शन के अपर महानिदेशक श्री पी.के. सुभाष। अपने करियर की शुरुआत आपने भारतीय रिजर्व बैंक से की, जहां बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी का सफर तय करते हुए आपने एक नया मकाम हासिल किया। During the last 1 year, I very closely worked with him. I found him very proficient in his work, very knowledgeable, and over and above, a team leader, I would say. He takes along everybody so well along with him, and not only professionally very efficient, I found him as a very nice person, a gentleman, soft spoken. Whenever I discussed anything with him, he will come out with very logical statements, what can be done, what cannot be done, and how it can be done. Really, it is not only loss for Doordarshan, it will be a loss personally for me, because every interaction with him has been always so good. अपर महानिदेशक के पद पर रहते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। कला, संस्कृति और साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। Subhash ji was given his entire career to Doordarshan, is superannuating. On behalf of the entire Prasar Bharati family of Doordarshan and All India Radio, I wish my very best to him for the future and thank him for the service that he has given to Doordarshan over the decades. He is perhaps one of the last of an entire generation of illustrious program officers who have shaped and influenced Doordarshan, the Doordarshan that all of us watched. Several of the crucial live coverages, important events of national importance like Independence Day, Republic Day. It is the experience, the expertise, the creativity of officers like Subhash ji that went into these events. So we are all very thankful, very indebted to him for his service and his contribution, and once again wishing him the very best for the future. सत्य के तुम हो पुजारी शुभार, सत्य के तुम हो पुजारी शुभार, कर्म का तुम्हीं से होता आभार, कर्म का तुम्हीं से होता आभार, सर्वदा संस्कृति के रक्षक हो तुम, संस्कृति में ऐसे ही रमे रहो तुम, देते हैं दुआ
आपके सफर के तमाम हमसफर आपके कार्यों के साक्षी बने हैं, जिन्होंने अपनी राय रखते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। Subhash sir is such a steadfast person, eligible, capable, knowledgeable and proficient in program production. He never allowed the disappointment to translate into angry reaction like severe punishments. And like Rudyard Kipling says, I always prefer to believe the best of everybody. That is what Subhash sir has done. He has believed in that everybody has a capability to deliver their best. And he waited patiently for all his subordinates to deliver the best. Our ADG sir took over charge of our Kendra at a very challenging time. Back-to-back live OBs, around 200 OBs in a year, major events of PM and all. The guideline from ADG sir was just go and do it. Sir literally infused fresh life into our Kendra. All of a sudden, a dull and routine job became thrilling. Credit goes to sir for reviving DDK Delhi. A man of few words and a gentleman who always keeps his words. I owe all that I have learned in my life to his leadership. मेरा सौभाग्य है और बहुत खुशी है कि ये मौका मुझे मिला है और ये बहुत समृद्धि के द्वार जो हैं वो सर आपके साथ जो बिताए क्षण हैं 5 साल से ज़्यादा मैंने आर्काइव से आपके साथ सफ़र शुरू किया था और आज का ये मोमेंट जो है मैं इसको बिटर स्वीट मोमेंट कहूँगा। सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमने क्षण आपके साथ बिताए, देखिए आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज और पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एटीट्यूड सर इतना ज़बरदस्त था कि हम कोई भी बात जो है वो बड़े खुले मन से आपके सामने कह सकते थे। ऐसा कभी पहले नहीं, बहुत सारे बॉसेस के साथ काम किया, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन जो प्रिसीजन, मतलब आपकी एक बात सर मैं सबको बताना चाहता हूँ, चंद शब्द स्क्रिबल करने, पहले हमें ये आदत होती थी कि बड़ा सा एक डायरी लेके जाओ तो बॉस इंप्रेस होता है, फिर उसके बाद हम कहते थे कि नोटबुक जो है ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सर से हमने ये सीखा, एक छोटी सी पर्ची चाहिए, उसमें 4 शब्द आप स्क्रिबल कर दो और पूरे हफ्ते का स्केड्यूल जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा और आपके टास्क जो है वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। सच वॉज अ ग्रेट द कॉम्पिटेंस मैं कहूँगा, और इतना ज़्यादा विजन सर का जो रहा। सर ने इतनी बारीकियों से उसको कैसे रिलीज करना है और किन किन पोर्शन को सेलेक्ट करना है, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, ऑडियो के माध्यम पर थोड़ा सा हम लोगों को छूट दे देते थे कि ना तुम संगीत के आदमी हो, इसको देख लो तुम लोग। और बड़ा आश्चर्य होता था कि हमने दोनों दौर देखा। जब हम लोग फाइल भेजते थे मैनुअली तो जो मोती के दाने की तरह से इनका जो लिख के आता था तो विश्वास नहीं होता था कि हस्तलिखित मामला है ये। मैं आशा करता हूँ सर से आप ज़्यादा वक्त न लें, 2-4-6 महीने में कुछ ऐसी चीज़ लिखें जो इतिहास में दोहराया न जाए, जो लोग उसको जाने कि ऑडियो वीडियो में कैसे काम किया जा सकता है, कितनी ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है। I met Mr. B.K. Shuvas exactly where I am sitting as of now today. A long time back, in 5 years, almost 5 years I am spending here. And the same room that sir used to occupy. And I had a very nice interaction with him, by the way. Whenever I had tried my level best to meet him in the morning, because he is one of the early comer like me. I used to come early and I used to go and meet him. And in the conversation, the greatness of the person was that he will tell you कि what is the weak point of yours. वो सर वही बता देते थे कि कल्याण इसमें ना थोड़ा सा आप काम कर लो, तो ये मैं देखता था सर के अंदर है। एंड आई हैव ऑलवेज टेकन इट वेरी वेरी इन ए स्पोर्टिंगली, and I have told by the administration also, and later on sir I have got a deep respect about him, about his superlative knowledge about the administration. Sir was chairman of many that board proceedings and committees where I was also present and I was a member of that, and I have seen the way he used to conduct himself and conduct this entire committee. It was unthinkable. Firstly, one needs to have a lot of in-depth knowledge about the administration, then otherwise you can conduct a committee which comprises of a very senior officers and who has also got equal competence and capability. जहाँ तक सर का सवाल है, मेरे ख्याल से सुपरएनुएशन इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट, बट वी मस्ट लर्न एज एन ऑफिसर व्हाट ही हैज़ गिवन टू अस. एज एन ऑफिसर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक क्विक डिसीजंस.
और यहाँ पे क्विक डिसीजंस ही नहीं, क्विक डिस्पोजल ही नहीं, ही वॉज एन ऑफिसर हु नेवर बिलीव्ड इन लटकाने भटकाने अटकाने में. ऑलवेज वेरी क्विक, वेरी क्लियर एंड वेरी मेटिकुलस. आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में आपका योगदान और साझेदारी रही है. आपके कार्यों और फैसलों से भारतीय संस्कृति, कला और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनगिनत प्रसारण संबंधी फैसले सराहनीय रहे. जब भी दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों की चर्चा होगी, आपका नाम बड़े ही अदब और सम्मान से लिया जाएगा. I worked in 3 states in the southern zone. I worked in Tamil Nadu, I worked in Karnataka, then again, of course, a brief period in my home state, Kerala. Then got through the UPSC selection as Assistant Station Director. And my career in Akashvani and Doordarshan started from there. I belong to the 1991 batch of IBPS officers. I joined a bit late, of course. Then initial posting as ASD, those days it was ASD, not ADP, was in Jaipur, Rajasthan. I joined Port Blair in November 2004. And after 1 month, the tsunami came. So jokingly, some of my colleagues say that you brought tsunami here in the islands. Tsunami days, of course, was very, very tough. During those periods, I still remember we managed with great difficulty. I used to stay in a tempo van parked in the open space for almost 1 month. I used to sleep in a tempo van because I contacted the administration and arranged tents for all my staff members. So everybody was afraid of going back to the quarters. So in the open ground, we arranged tents for all the staff members. Myself and my station engineer, both of us slept in the tempo van parked in the open space. This continued for about 2 weeks, I believe. That was a very, very difficult stage. And what we ensured that the transmission continued in the islands. Port Blair is a Kendra where there is no RNU. And when I joined, the transmission was only 1 hour, that also 2 days in a week. I increased to all days. Transmission was increased to 2 hours, thereafter 4 hours. I introduced all regional language programs because there were a lot of people who were speaking Tamil, Telugu, Malayalam and Bengali in the islands. So I introduced programs in all these languages. Then I realized that there is no news bulletins from the Kendra. Then I introduced the news bulletin. It was not a perfectly news bulletin with RNU inputs and all. 2008, I was again transferred to Delhi. I joined DG Doordarshan as a DDP. I was looking after national programs, SFC. 2010, I joined DDK Trivandrum as a head of the office and as a DDG. In 2013, when I was promoted as ADG, I was the head of the office for Doordarshan Kendra. I was the zonal ADG for the entire Doordarshan network in the eastern zone. And I was the zonal ADG for Akashvani, year 1 and year 2. So it was very difficult. It was a challenging job. I used to sit in the Doordarshan Kendra for a half a day. And the next half I used to go to the Akashvani for discharging my duties as ADG Eastern region. So it has been a journey of many interaction with many people, many colleagues, many characters, many people having many behavior patterns, people having different moods and all. I think in my career, what I have been trying to do is that I have been trying to ensure the interaction. I have been a facilitator to integrate 3 wings of Doordarshan.
and Akashvani as well. I've noticed wherever I worked, there was no proper coordination between these three wings. So wherever I went, I used to take regular meetings of all these wings, and I used to encourage interaction between programmers as well. So you should recognize their contribution to the organization, whatever level it is, and treat them with dignity. So these are the things that I wanted to share. So whether it is in your career or life, if you follow a certain basic principles in life, I don't think you will be worried too much. See, 2-3 principles are, let's see, make peace with your past so it won't spoil your present. Simple rule. Then, what others think of you is none of your business. Time heals almost everything. Give it time. Time heals almost everything. Give it time. Don't compare your life to others. And don't judge them. You have no idea what their journey is all about. वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो उनको जज करने की कोशिश मत कीजिए ना. Stop thinking too much. It's all right not to know answers. Certain things we do not know, admit that. These answers will come to you when you least expect it. Life has got a way of teaching you certain things. You come to realize these things at a later stage, maybe. No one is in charge of your happiness except you. Be happy. Stay positive and happy. Stay positive and be happy. Work hard. Don't give up hope. Be open to criticism and keep learning. Be open to criticism and keep learning. Move on with a positive mindset. So these are the basic things. If you inherit these things, your way of approaching your life, your way of approaching your career in this organization will definitely improve. So at this juncture, I would like to thank all of you for the full support and cooperation that you have given me in discharging my duties. I would also thank my senior officers like DG CEO for the guidance and cooperation that they have extended to me during my tenure, during my service career in this organization. And at the end of it, all the very best to you all. Thank you very much. बनारस का नाम आते ही मन में घुलने लगती है मिठास, वहाँ की कला संस्कृति की। एक साहित्यकार जिसने पढ़ाई की विज्ञान विषयों में, लेकिन कलम चलाई साहित्य और कविताओं में। जी हाँ, बनारस डायरी काव्य संग्रह की रचना करने वाले डॉक्टर हरीश मीनाश्रू को इस वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी ने उनके काव्य संग्रह बनारस डायरी को सम्मानित किया है। हमारे साथ हैं गुजराती भाषा के साहित्यकार, कवि, लेखक आदरणीय हरीश मीनाश्रू, जिनकी सशक्त रचना, उत्कृष्ट रचना काव्य संग्रह बनारस डायरी को सन 2020 के लिए भारतीय साहित्य अकादमी ने सुशोभित किया है सम्मान के साथ। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनसे रूबरू होकर बातचीत कर रहे हैं। मीनाश्रू जी, बहुत बहुत आपका सबसे पहले तो मैं आभार करूंगी कि इतने बहुमूल्य समय आपने हमारे दूरदर्शन की टीम के लिए दिया, और ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी कि आपकी रचना को साहित्य अकादमी ने चुना है सम्मान के लिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपकी रचना है बनारस डायरी जी, जिसका नाम सुनते ही जहन में पवित्र गंगा, मंदिर में बजती घंटियाँ और वो एक अध्यात्म का आलम जहन में आ जाता है।
तो क्या आपकी बनारस डायरी में यही विषय वस्तु है जो अध्यात्म से रिलेट करती है? देखो, बनारस डायरी में आपने जो बात कही वो तो है ही मोटे तौर पे, और उनमें बहुत सारी और रचनाएं भी हैं। एक बड़ा सा गुच्छ है 18 कविताओं का। और जो आपने बताया कि अध्यात्म की बात आती है, गंगा का ख्याल आएगा, वो घाट की आरतियां वगैरह का ख्याल आएगा, तो ये सब तो है ही एक लैंडस्केप के तौर पर। मगर साथ साथ आप एक बात भूल रही है कि बनारस से एक शख्सियत भी जुड़ी हुई है, वो जो अंतर की बात लेके आई है, कबीर। तो कबीर भी है, तुलसी भी है। और बनारस अब आज जो बनारस हमारे सामने है लैंडस्केप के तौर पर, और इनस्केप के तौर पर कबीर है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ जक्सटापोज होती है, एक इंटरवोवन है, एक दूसरे के साथ गूंथी हुई है, एक दूसरे से टेंशन करती है, और थोड़ा सा अपने हिसाब से विडंबन भी होता रहता है कबीर की शैली में अगर बात करें तो। और इस तरह से कविताएं आगे चलती हैं, और ये पूरी गद्य कविताएं हैं जी। और उसमें कभी कभार वो एक आध गीत भी आ जाता है, कहीं कुछ लयान्वित सा भी आ जाता है, कहीं कुछ गज़ल सा भी आ जाता है। हरीश जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई कविता हमें सुनाएं, हमसे शेयर करें। जी, गंगा की बात है तो गंगा की एक छोटी सी गीत रचना है। साधो कहाँ ढूंढना गंगा, प्रहर प्रहर ते पान नु बीड़ू, क्षण क्षण ते शहनाई, मिश्र ख्याल ध्रुव पद अरु टप्पा, बीच बीच माँ गिरिजा देवी, ठुमरी देत सुनाई, ईश्वर नु जे करे आचमन, पावे पूरब अंगा, साधो कहाँ ढूंढना गंगा। डाबे वर्णा ऋण भरेली, जमणे वहती असी, संग चली तो भई नगरिया, बीच बीच माँ कथरोटे या कौन सी नदिया बसी, ए जड़नू जो करो आचमन, तो होगा मन चंगा, अब नहाना क्या धोना, हरदम ओस के बीच अड़ंगा, साधो काहे ढूंढना गंगा, साधो काहे ढूंढना गंगा। देखो, शुरुआत कैसे होती है, साधु कहाँ ढूंढना गंगा, यानी हम ढूंढ रहे हैं मगर कहाँ ढूंढेंगे, ये बात है। जी। और जब रचना के अंत में जब हम आते हैं तब तक हमको पता चल जाता है कि गंगा को कहीं और पे ढूंढना नहीं है, हमारे मन और काहे ढूंढना गंगा। अब नहाना क्या धोना, अब नहाने की जरूरत भी क्या है, धोने की भी जरूरत क्या है, उसके बीच अड़ंगा हो गए। यानी आप ये जो ओस बोलते हैं कितनी निर्मल होती है, सुबह सुबह में गिरती है, तो उसके बीच ही अगर आपका स्थान होगा, यानी अगर आप अंतर में चले गए तो फिर आपको ये बाहर वाला जो ये ढंग करना पड़ता है, ये जो बहिर्मुख क्रियाएं, विधि विधान आदि करना पड़ता है। तो यही बात जो मतलब मेन जो मूल रूप है आपका, उसका ये है कि इंसान को अपने मन में पहले झांकना होगा, मन से जुड़ना होगा, अंतर में जो कुछ है वो अंतर में है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं कि ये बड़ा अंतरिक्ष है, बराबर है। ये शब्द कैसे बना है, अंतर और इक्षणा, इक्षणा यानी देखना। ये अंतरिक्ष बाहर में देखने की चीज है ही नहीं, अंतरिक्ष मानी अंतर में देखना, अंतर में ही मिलेगा। तो ये बात है जो संतों ने कबीर साहब से लेके जितने भी ये संत परंपरा में हमारे यहाँ जितने संत हुए, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो कुछ भी आप पाओगे अपने भीतर पाओगे, बाहर कुछ ढूंढना नहीं है। तो ये तो सेंट्रल आइडिया जैसा था, इसी वजह से मैंने, तो यही आपकी विषय वस्तु है। और बहुत ही सुंदर बात है कि साहित्य अकेडमी में उत्कृष्ट रचना के रूप में उसको चुना गया है। तो हरीश जी, आपके जो लिखने की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और हम आपके बारे में ये भी जानना चाहेंगे कि आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा। जब मैं BSc के साल में था तब शुरू हुआ। जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में, मुझे बराबर याद नहीं है, तब क्या हुआ कि वो जो नोटिस बोर्ड पे, आपको पता होगा कि जब हम बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, तो नोटिस बोर्ड पे वो लोग हमसे मांगते हैं कि कुछ अपना लिख के ले आओ, तो हम कुछ दे देते हैं, कोई पैराग्राफ या कुछ भी चीज़ या कुछ चित्र निकाल के ले रहे। तो मैंने एक छोटी सी कविता, और कविता में मेरे ही नाम का जो प्रथम अक्षर होता है, वो कविता की प्रत्येक पंक्ति में भी प्रथम अक्षर, ये अमरता की बात है। हाँ, सब लोगों को अपने अच्छा। को अमर करने की चाह होती है। हाँ। तो हमने भी हमारे नाम के पीछे खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, तो हमने भी बच्चे थे तब भी सर पटका था। तो हमारे जो गुजराती के शिक्षक, अध्यापक, टीचर, वो बड़े भले थे। वो हमें खोजते खोजते चित्रकला के क्लास में तब हम बैठे थे, तो वहाँ आ गए
अरे भाई कौन है? तो मैंने बोला कि भाई मैं हूँ, हमारी क्या गलती हो गई? नहीं ये तूने लिखा है, पक्का? मैंने बोला पक्का। तो वो तो खुश हुए थे, वो विद्यार्थी वत्सल थे और उनको पता चल गया कि ये 5 साल की उम्र में ऐसा लिखा है तो कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बोला कि मैं तुझे एक सब्जेक्ट देता हूँ और मुझे उस सब्जेक्ट पे कविता करके तुम मुझे दो। तो कुछ सब्जेक्ट दिया, तो मैंने दूसरे ही दिन पेशे खिदमत कर दी वो कविता उनको। और इस तरह से समझ लो कि जो चित्रकला की देवी होगी उसने मेरा हस्तांतर वो कविता की देवी को कर दिया उस दिन। और वो जो हमारे टीचर थे आज तो यहाँ नहीं रहे। तो कितनी पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुके हैं अब तक हरीश जी? ये पुस्तक, अगर पुस्तक की कविता की पुस्तकों की बात करते हैं तो ये 10वां काव्य संग्रह है मेरा। तो जो आपने बनारस डायरी लिखी है जी, तो क्या बनारस जाकर आपने उन स्थितियों को परखा, देखा, नहीं समझा? बनारस से हमारा एक अंतर का संबंध है। बनारस डायरी जो पूरे की पूरी है उसमें मेरा कबीर से संवाद भी है। कबीर से एक कबीर जवाब देते हैं अपने हिसाब से, अपनी सदुक्कड़ी जैसी बोली में, और हम कुछ पूछते रहते हैं, हमारे संशय होते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इतने बड़े साहित्यकार जिनकी रचना को इतनी उत्कृष्ट सम्मान मिला। ये तो सफेद हो गए तो बड़े तो हो ही गए। कहते हैं कि एक साहित्यकार या लेखक बनने के लिए कुछ अंदर से कुछ ऐसी जागृति होती है या कौन सी ऐसी हवा चलती है कि हम कुछ अच्छा लिखें? क्या गुण होने चाहिए ऐसे? मैं क्या बताऊं आपको कि देखो, आप जिस जागृति की बात करते हैं कि मुझे लेखक बनना है, मुझे चित्रकार बनना है, मुझे संगीत, ये कुछ इनबिल्ट सा होता है। देखो 5 साल या 15 साल के 12 साल के बच्चे में ये चीज़ अंदर दबी हुई होती है उसकी, वो जैसे जेनेटिक हो या जो कुछ भी हो या प्राक्तन संस्कार हो उसके पुराने, उसकी वजह से जो और लोग नहीं कर पाते हैं या बच्चा सब नहीं कर पाते, तो बिल्कुल। वो बच्चा कर पाएगा। जी 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 जी। कि भी बड़े अभी हम देखते हैं कि बड़े अच्छे से लोग गाते हैं, हम भी चकित रह जाते हैं कि भाई ये तो ये इतनी सारी मुर्गियाँ वो ले रहा है तो किस तरह से लेता आवाज है, का कुछ अलग ही उसका अंदाज होता अंदाज है। ये सब चीज़ें वो ऊपर से लेके आता है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मेरा ये नहीं हो पाया, मैं अच्छा लेखक, ऐसा कुछ नहीं होता है। हरीश मीनाश्रू जी, जी। आपका ढेर सारा हम आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आपकी बनारस डायरी हर व्यक्ति पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कला संगम के अगले अंक में एक और कलात्मक रंग से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे और साझा करेंगे एक दूसरे के विचारों को। तब तक के लिए कला संगम की पूरी टीम और मुझे प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।